of MSMEs in the northeastern region. This is being organized by Ministry of MSME in partnership with the state government, particularly the industry department. We're very happy to the state government for inviting us and also for coming on board to organize this very important awareness program, so that whatever MSMEs programs we are doing to develop the MSME landscape in the NER, we want to reach out to the last mile, and we hope that through this conference, the MSMEs, particularly in the state of Tripura, will benefit. And for tomorrow's program, our Union Minister of MSME, Shri Narayan Rane, along with the Honorable Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Saha, and our Minister of State, Bhanu Pratap Singh Verma sir, and senior dignitaries. Our Secretary will be here. Our Secretary MSME is also here, and also the Chief Secretary of the State of Tripura also will be here. We would like to also give a little briefing of what MSME does for development and growth and scaling up of MSMEs in the region. We have a specific program, especially the NER program for the MSMEs. Till date, we have released 140 crore under this program for the NER. We have our flagship program, Prime Minister Employment Generation Program, under which 1.14 lakh micro units have been assisted, and we have generated about 7.6 lakh jobs in the NER region. We also have cluster development and Sufurti development, Sufurti cluster development programs. These are the backward linkage programs where we try to address the global value chain. And we also have National SC/ST Hub Scheme. We look forward to an inclusive growth. We want our SCs and STs also to come along in our economic growth story. So we have this scheme specifically for SCs and STs. And under these schemes, we're having several components where our SCs and STs are getting benefited, particularly the CLCS scheme, where we are helping with 25% subsidy. This we will be also sharing in detail tomorrow, as well as in the coming days also. We also have international cooperation, where we also help our MSMEs find market linkage. And under this, we have more than 700 international fairs and events already approved in our list, where MSMEs are sponsored to go and participate in all the international fairs, and also they get their capacity built up. They understand what is the trend that international global market is looking at. Recently, we have also introduced a new initiative called the First Time Capacity Building component for the MSMEs. We are also helping them getting registered in the EPCs. We have signed MOUs with 29 EPCs. We also help them get their products and services tested, for quality and also to meet the various requirements in the international market. We also help them with their insurance when they export their products. So these are some of the new initiatives in the market linkage. We also have PMS, Procurement and Marketing Support Scheme, and we help our MSME units to go and participate in all the domestic fairs and exhibitions. And I'm very sure many of our Tripuri MSMEs have benefited out of these schemes. We have so many other schemes, and I know the program directors are here with me, so each one of them will also share what kind of programs they are implementing it. We want you to capture those things and then spread in the newspapers so that our last mile SCs, STs, Tripuris, all the MSME units of the state can benefit from the schemes that we are running. We are also very happy that Special Secretary Shri Abhishek Chandra, he is here. He will also talk about what the state is doing and how we are partnering together to organize this regional conference. He will also be speaking. We have our CEO, KVIC, here. It's a very important wing of the Ministry of MSME. He will also be sharing. And we have 3 directors sitting here. They will also be sharing their programs. So with this, I want to request Mr. Chandra to speak.
Yeah, thank you. I thought first Vineet sir will speak, but anyway. No, please carry on. So, good evening to all of you. This is a very important program that we are doing in the state. This is an important event. If you are comfortable in Bangla, আমি বাংলাতে বলবো অথবা আমি হিন্দিতে আর অথবা আমি আপনি যেটা বলবেন তো আমি ইংলিশে বলবো আপনার সুবিধা অনুসার আপনি বলুন हिंदी में ठीक है। तो आज का ये जो प्रोग्राम है ये जो है एक फॉलो अप एक्शन है जो माननीय प्रधानमंत्री ने हमारा एक क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव किया था। आपको खुशी होगी कि हम लोग अभी सेक्रेटरी साहब के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 3 डे का वर्कशॉप हम लोग 5th to 7th वहाँ पे थे, जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री ने सबको बोला था कि जो है एमएसएमई एक फलक्रम ऑफ ग्रोथ होगा। उसी बेसिस को उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए सेक्रेटरी साहब ने जो सेक्रेटरी एमएसएमई सर हैं उन्होंने एक जो है हमें डायरेक्शन दिया कि हम आपके स्टेट से नॉर्थ ईस्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस बेसिस पर क्योंकि एमएसएमई जो है आज के तारीख में सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। जो एमएसएमई सेक्टर है वो दुनिया में हमारे तुलना में आप ये देखिए समझिए इसको कि 26% ऑफ द जीडीपी इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड जस्ट बाय एमएसएमई। अगर आप इसको देखें 26% का जो हमारा फोकस है जीडीपी का इट इज नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर जो पूरा हमारा जो फोकस कर रहे हैं। और अगर हम तुलना करें बाकी देशों में तो चाइना इसमें जो है हमारा लीड है जिसको हम लोग क्रॉस करना चाहते हैं जहां पे 40% है। जो मैन्युफैक्चरिंग हब अगर इंडिया को बनना है तो लीड करना है सिर्फ एमएसएमई से। इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये ग्रोथ के लिए और हमारे इंडस्ट्री के लिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि 8 स्टेट्स के सचिव सब यहाँ पे पधारे हैं। हम पूरे फोर्स में जो है एमएसएमई के जो हमारे लोग हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं और जो लाइन डिपार्टमेंट के, आई एम वेरी इनकरेज कि विनीत सर जिनके साथ मैंने पहले काम किया है सागरमाला में, विनीत सर जो है यहाँ पे अभी चेयरमैन है केवीआईसी के, लेकिन इसके पहले वो थे चेयरमैन ऑफ कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट जहाँ पे मैं था डायरेक्टर और उनके अंडर मैंने काम किया है। तो मैं बहुत ही इनकरेज हूँ कि वो यहाँ पे आए हैं अपना मूल्यवान समय लेकर और उनके मार्गदर्शन से हम लोग और काम करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज आपके सामने रखना चाहूंगा। यहाँ पे एक कि कल का जो प्रोग्राम है इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय मंत्री साहब जो यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई है वो रहेंगे। उन्होंने बताया है कि हम लोग एक सीओस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। 30 सीओस आए हुए हैं बाकी जगह से जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे एमएसएमई में। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे थ्रस्ट सेक्टर्स हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जैसे कि बैम्बू सेक्टर, बहुत ऐसे इत्यादि सेक्टर्स हैं जैसे गैस और ओएनजीसी वाले जो हमारे फोकस सेक्टर्स हैं उसमें गेल के साथ जो स्मॉल ट्रिकल डाउन इंडस्ट्रीज वो बने। और इसके अलावा हमारे जो स्फूर्ति के क्लस्टर्स हैं उनके साथ भी हम लोग जो कर रहे हैं ट्रेनिंग के साथ, वो भी उनके जो सेक्टर स्किल काउंसिल के जो इंचार्ज हैं वो भी कुछ लोग यहाँ पे आए हैं। आपको और भी मैं बताना चाहूंगा कि इतना मूल्यवान ये एक कॉन्फ्रेंस है कि एडीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मिस्टर लक्ष्मणा वो भी आए हुए हैं। और ये कल एक पूरा कॉन्फ्रेंस होगा जहाँ पे सीओस के साथ भी हम लोग एक जो है आइस ब्रेकिंग सेशन रखेंगे उनके सामने कि क्या क्या उनको चाहिए और क्या हम कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं आपको जो है कल के लिए भी आमंत्रित करता हूं। अगर आपको लाइव सेशन भी करना है वहां पे हम आपको अलाउ करेंगे, बट ओनली फॉर द इनॉग्रल पार्ट, क्योंकि बाकी जगह पर जो है इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द वर्किंग जो हम लोग करेंगे। आपको जो है ये जानकर और भी खुशी होगी कि हम इधर रुकेंगे नहीं। हम जो है माननीय प्रधानमंत्री ने जो हमें कुछ टारगेट्स दिए थे यहाँ पे कुछ करने के लिए एमएसएमई सेक्टर के लिए, उस सेक्टर को हम एक इंटरनेशनल लुकआउट कि जहाँ पे बांग्लादेश के साथ ट्रेडिंग और बाकी रीजनल ट्रेड के साथ, जैसे हम लोग जो है हमारा
इनलेट वाटरवेज के साथ जो ट्रेडिंग की हमारी स्मॉल कंपनीज हैं उनके साथ ये भी हम लोग फोकस करेंगे इस वर्कशॉप में। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं चाहूँगा कि चेयरमैन जो KVIC हैं वो भी हमें कुछ इसके बारे में बताएं और मिनिस्ट्री के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं बाकी डायरेक्टर्स यहाँ पे आपके सामने रखें। धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अभिषेक को और स्टेट गवर्नमेंट को कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम बनाया और हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे आ सकें। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है उसका फोकस एरिया है खादी और विलेज इंडस्ट्री को खासतौर पे बढ़ावा देना, और ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जितना पोटेंशियल और स्कोप यहाँ पे है विलेज इंडस्ट्री का, जैसा इन्होंने बताया एग्रीकल्चर में हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हो, बैम्बू में हो, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग विलेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। और हमारा एक जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम PMEGP, जिसके अंडर हम माइक्रो एंटरप्राइज को लोन देते हैं और करीब करीब 30 to 35% हम लोग सब्सिडी देते हैं लोन के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी देती है, तो अगर आपने 10 लाख का लोन लिया तो 35% आपको सब्सिडी मिलती है और वो आपके बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और इसको हम KVIC खुद नहीं चलाता है, स्टेट के साथ जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर हैं वो भी चलाते हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे अगरतला में बहुत अच्छा काम हुआ है और कल करीब 67 यूनिट्स को जिनका की वैल्यू करीब 1.5 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी होगी और करीब 4.5 से 5 करोड़ रुपए का लोन होगा, वो उनको ट्रांसफर किया जाएगा 67 एंटरप्रेन्योर्स को फ्रॉम त्रिपुरा। एंड एज फार एज नॉर्थ ईस्ट इज कंसर्न, ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में करीब 422 एंटरप्रेन्योर्स को टू बी प्रिसाइज करीब 11 करोड़ की सब्सिडी कल रिलीज की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ MSME। सो ये एक बड़ा इनकरेजिंग साइन है यहाँ पे। हमारी ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छी है और ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दी positive effort of our team as well as the team of state government and all the banks who are there, who are supporting us, and we look forward that in the times to come this will be taken further. Second is we are very thankful to the state government कि हमारा जो यहाँ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का ऑफिस था और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड जो है स्टेट का, उनका परमानेंट ऑफिस नहीं था, उसके लिए लैंड हमको KVIB ने, स्टेट गवर्नमेंट ने दी और हमने उसको बनाया करीब 7-7.5 करोड़ रुपए लगा करके। और दोनों सेम ही प्रेमाइस में, शायद ये मेरे को लगता है इंडिया में पहली जगह होगा जहां KVIC और KVIB दोनों एक ही प्रेमाइस में होंगे और एक साथ काम करेंगे। उसका भी कल इनॉग्रेशन है और उसके साथ वहाँ पे एक हनी क्लस्टर भी है, तो हम आशा करते हैं कि उससे भी एक बहुत अच्छी सिनर्जी आएगी KVIC और KVIB के काम में। तो जो विलेज इंडस्ट्री जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रेंथ है उसको हम लोग लिवरेज करके और आगे ले जा पाएंगे। आई वंस अगेन थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग हियर, एंड आई थैंक द स्टेट गवर्नमेंट एंड अभिषेक इन पर्टिकुलर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं संक्षिप्त रूप में 3 मुख्य स्कीम जिसके बारे में मैं आपको आज त्रिपुरा में खासकर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस करके एक रैम्प प्रोग्राम जो कि हमारे मंत्रालय का एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट, जो बाहर के बैंक के द्वारा जो हमारे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है उसमें का सबसे बड़ा प्रोग्राम अभी तक के इतिहास का हमारी मंत्रालय का ये रैम्प प्रोग्राम है। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि त्रिपुरा उन कुछ शुरुआती स्टेट्स में रहा है जिन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया है इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने का। और इसमें इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है किस तरह से हमारे MSMEs को टेक्नोलॉजी का एक्सेस दिया जाए, टेक्नोलॉजी तक पहुंच दी जाए, मार्केटिंग तक पहुंच दी जाए, किस तरह से उनको हम लोग डिजिटलाइजेशन उनका कर पाएँ जिससे उनको IT में एम्पावरमेंट मिल पाए। तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट रैम्प का प्रोग्राम आया है। TIDCL जो त्रिपुरा की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो इसकी हमारी एक नोडल एजेंसी के रूप में सामने आई है और हमारे माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन के बाद 5 करोड़ का एक जो फंड है उसको भी ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके तहत अब त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट इससे अपने MSME का जो स्टेट ऑफ MSME है उसको देखेंगे और किस तरह से किन किन क्षेत्रों में हम उसमें भारत सरकार से त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट की उम्मीद कर पाएगी, कौन से प्रोजेक्ट में वो चाहेगी कि भारत सरकार इस रैम्प प्रोग्राम में सपोर्ट करे, फंडिंग दे। उसमें वो हमारे पास एक स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन प्लान लेके आएंगे। उसको जब हम अप्रूव करेंगे तो उसके बाद हम उन सारे बिंदुओं को, उन सारे क्षेत्रों को हम
हम फंडिंग प्रदान कर पाएंगे रैम प्रोग्राम में। तो मुझे बड़ी खुशी है कि त्रिपुरा वन ऑफ द पायनियर स्टेट्स जिसने रैम प्रोग्राम में हमारे साथ भागीदारी की है। और NER में मैं ये बताना चाहता हूँ कि NER का तो पहला स्टेट था जिसने इतना आगे आकर ये सम्मान ये प्रोग्राम दिया है। दूसरा, मैं बहुत जल्दी ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया था कि हमारी एक पॉलिसी रहे जो कि MSME को ना केवल क्वालिटी में आगे लेके जा पाए बल्कि उनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसीजर्स को भी आगे लेके जाए। तो ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट प्रोग्राम आप सभी MSMEs, मैन्युफैक्चरिंग MSMEs जो त्रिपुरा की, मैं अनुरोध करता हूं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, सर्टिफिकेशन लें। और इसके बहुत सारे लाभ हैं। आपको ना केवल इसमें क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट आपके प्रोसेसेस में होगा बल्कि आप एनवायरनमेंट के प्रति भी जो क्लाइमेट चेंजेस के जो मिटिगेशन मेजर्स हैं उसको भी आप आगे लेके जा पाएंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे एडवांटेजेस जैसे कि डिजिटल स्कीम आपको फ्री मिल जाएगी, जैसे कि हमारे जो बैंक्स हैं उनके साथ जो लोन्स हैं उसमें प्रोसेसिंग फी कम हो जाएगी। तो त्रिपुरा में जो MSME जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उनको मैं विनिर्माण क्षेत्र में जो भी MSMEs हैं मैं चाहता हूं कि वो आएँ और ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट का लाभ उठाएं। NIT अगरतला एक हमारी एक डिज़ाइन में इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी डिज़ाइन स्कीम में जिसमें हम 40 लाख तक का सपोर्ट करते हैं नए नए डिज़ाइनर्स को MSMEs के साथ डिज़ाइन बनाने के लिए। मैं अनुरोध करता हूं कि और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी हमारे साथ आएँ और इंक्यूबेशन और डिज़ाइन में हमारे साथ आकर के इन प्रिंसिपल अप्रूवल लें। और जो एक इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को हमको बढ़ावा देना, जो इनोवेशन नवाचार को हमको आगे लेके चलना है, उसको फिर जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा त्रिपुरा के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे साथ आएंगे, हम उनको सपोर्ट कर पाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में त्रिपुरा के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हमारे इंक्यूबेशन और डिज़ाइन स्कीम का पार्ट बने और जिससे हम एक इनोवेशन की जो एक परिपाटी है उसको आगे लेके चल पाएँ। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्ला जी, यूसी शुक्ला जी से अनुरोध करता हूँ कि कुछ बताएं। नमस्कार। जैसा कि अभी चंद्रा साहब कह रहे थे कि PM साहब का विजन है क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करना। तो क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट की इसलिए बात होती है कि इसमें बहुत सारी इकाइयाँ जो एक सीमित एरिया में होती हैं उनको इकट्ठे मदद पहुंच जाती है। तो हमारे मंत्रालय की जो फ्लैग स्कीम है क्लस्टर डेवलपमेंट की वो 2003 से इन प्लेस है और NER रीजन को हम लोगों ने 43 प्रोजेक्ट्स दिए हैं। इसका जो बड़ी विशेषता है, जो खूबी है इस क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम की जो है, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक है कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स के लिए और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स में जैसे क्लस्टर है, यहाँ पे शहद का है मान लीजिए, हनी क्लस्टर्स है, और क्लस्टर में इंडिविजुअल यूनिट जो है कोई एक ऐसी मशीन है जो 2 करोड़ की है जो प्रोसेसिंग के लिए जरूरत है जिसकी वो खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वो क्लस्टर के माध्यम से ऐसी मशीनें हैं, या टेस्टिंग के लिए जो मशीन चाहिए वो बहुत महंगी है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या पैकेजिंग के लिए बड़े प्लांट चाहिए वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अकेले के लिए, तो ग्रुप में आके इसका फायदा उठा सकते हैं। और भारत सरकार जो ग्रांट जो है बहुत अच्छी देती है, NER को स्पेशल 10% एडिशनल ग्रांट देती है और इसमें ग्रांट 80% तक की है। अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 8 करोड़ भारत सरकार देती है, 1.5 करोड़ जो है स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, 1.5 करोड़, और 50 लाख जो है जो ग्रुप ऑफ MSCs हैं जो बेनिफिट लेना चाहती हैं वो आगे बढ़ के आके इसका बेनिफिट ले सकती हैं। अब की बार हमने इस प्रोजेक्ट की जो है लिमिट भी बढ़ा दी है कि 30 करोड़ के जो बड़े प्रोजेक्ट है जहाँ पे काफी बड़े ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। हालांकि थोड़ी सी ग्रांट कम होगी लेकिन 70% फिर भी भारत सरकार की ग्रांट रहेगी, 70% GOI ग्रांट हम ऐसे प्रोजेक्ट्स में दे रहे हैं। दूसरा, NER रीजन में जैसे यहाँ पे लैंड की शॉर्टेज रहती है, तो हमने अपनी क्लस्टर स्कीम में प्रोविजन किया हुआ है फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्सेस, और NER क्षेत्र में बड़ी तेजी से पिकअप हो रहा है, चाहे हमारी NER की स्कीम है, डेडिकेटेड स्कीम है, या क्लस्टर डेवलपमेंट की NEC CDP स्कीम है, दोनों में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है बहुत तेजी से
देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में NER से काफ़ी अच्छी हमारे पास डिमांड आ रही है। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो ये हमारी MSc CDP स्कीम थी, जैसा कि चंद्रा साहब ने कहा था, जो क्लस्टर अप्रोच होनी चाहिए डेवलपमेंट की, जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है उसके हिसाब से ये था। एक हमारे मंत्रालय की डेडिकेटेड स्कीम है सिर्फ और सिर्फ NER रीजन के लिए, उसका नाम है प्रमोशन ऑफ MSMEs इन NER एंड सिक्किम। इस स्कीम में भारत सरकार जो है 90% ग्रांट देती है। अगर कहीं पे मिनी टूल रूम की जरूरत है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की जरूरत है, मिनी टेक्नोलॉजी सेंटर की जरूरत है, या स्टेट गवर्नमेंट का खुद का कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जिसको और वो फर्दर विकसित करना चाहते हैं, उसमें सपोर्ट की जरूरत है, तो हम 15 करोड़ तक के प्रोजेक्ट में 90% ग्रांट देते हैं, यानी कि 13.5 करोड़ तक की हम इसमें GI ग्रांट देते हैं। दूसरा इसका कंपोनेंट है वो क्लस्टर से मिलता जुलता है, इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए है। इसमें हम 15 करोड़ के इंडस्ट्रियल स्टेट के प्रोजेक्ट में 90% GI ग्रांट देते हैं। बहुत अच्छी ग्रांट है और स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत तेजी से आ रही हैं इसमें जो है NER रीजन की, वो लोग बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं और हम लोग प्रोजेक्ट भी ग्रांट कर रहे हैं। तीसरा, एक NER रीजन से हमारे पास एक विशेष, जब इस स्कीम को हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे थे तो विशेष एक निवेदन कह सकते हैं या रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पे टूरिज्म का बहुत स्कोप है, तो टूरिज्म के लिए एक डेडिकेटेड कंपोनेंट दिया जाए। तो कहीं पे जैसे टूरिस्ट होम है या टूरिस्ट प्लेस में, वहाँ पे 20-25 माइक्रो सेक्टर की इकाइयाँ जो घरों से काम कर रही हैं, टूरिस्ट होम है उनके खुद के, तो जैसे उनको कॉमन बेकरी चाहिए, कॉमन लॉन्ड्री चाहिए और कोई कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट चाहते हैं, तो ऐसी इकाइयों को भी हम जो है इस स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से मदद पहुंचाएंगे और ऐसे प्रोजेक्ट में भी 90% भारत सरकार देगी। और लेकिन इसमें चूंकि प्रोजेक्ट ये छोटे होंगे इसलिए 4.5 करोड़ तक की भारत सरकार की ग्रांट इसमें मिलेगी। इस स्कीम में अभी तक हम लोगों ने ये 16 से स्कीम आई थी, 2016 से ये इंसेप्शन में है और तब से आज तक हमने 140 करोड़ रुपए जो है NER रीजन को दिए हुए हैं और 40 प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। तो ये हमारी फ्लैगशिप स्कीम जो थी NER रीजन के लिए थी। थैंक यू। Namaskar. Ministry of MSME is also implementing a scheme of funds for regeneration of traditional industries, the scheme which is known as UTI. So under this scheme, the broad objective is primarily to strengthen the traditional artisans by helping them to improve the manufacturing of their products and bringing them in sync with the market demands, whatever they have been traditionally manufacturing. The government of India gives support for construction of factory, for bringing in new machines, training, design and marketing linkages with the objective of providing sustainable and enhanced income to the traditional artisans. The assistance is up to ₹5 crore, where the number of artisans is more than 500. So under this scheme, since 2014, around 498 Surti clusters have been set up across the country, of which 266 are already functional. Of these, you would be happy to know that in the northeast region only, we have around 85 clusters which have been assisted with the government support of around 204 crore, benefiting around 40,000 artisans. The focus areas are primarily agro sector, textiles, handicraft, bamboo, khadi, honey. So tomorrow, one such cluster in Tripura Bamboo Mat Cluster will be inaugurated by Honorable Chief Minister of Tripura and Honorable Minister of MSME along with the other dignitaries. And this sector, in this cluster, the Government of India support is around 2.5 crore rupees, and around 500 artisans, most of them women, are being supported through this intervention. And what it has done is basically it has enhanced the income of these artisans who are producing this bamboo mats and other fashion accessories by at least 2 times.
So that would be one experience, and they would also be showcasing live. They will do a live demonstration of the products which are manufacturing. And going ahead, Northeastern region has always been a focus area of the Ministry of MSME, particularly through Spurti and other schemes. So we would like to the media and through the state government to publicize this scheme further, so that the traditional artisans with their traditional art would know that there is a scheme in the government which would support them to do this. In addition, obviously, Vinit sir has spoken about PMEGP. I'll not get into that. I'll talk also about Aspire scheme. This scheme is about setting up of livelihood business incubators. Why this scheme is important? Because when we identify a major economic activity of a region with job requirements and the requirement of the industry for setting up small enterprises, training becomes a very important part, incubation support becomes a very important part. So here Government of India is supporting government institutes and even private academic institutions by providing them capital support for setting up of plant and machineries where students can come, unemployed youth, they can come. They can learn whatever is the major economic activity of the region by an industrial simulation by working on those kind of plants and machines. Once they graduate out of those institutes, they can basically attain whatever self-employment or wage employment in the nearby industry. So here the Government of India support is around 1 crore for procurement of plant and machineries. In addition, there is also support for operational expenditure for hiring of manpower, for providing other facilitation support, whether it's a GST registration or financing related information. So we would be hopeful that these kind of scheme would also find its salience in the NER, and we have new LBIs being set up here. Thank you. So just for summing up, we are very encouraged. As you can see कि आप सब लोगों ने देखा है कि ये वाला जो एक हम लोग जो सेमिनार कर रहे हैं बहुत ही पर्पसफुल सेमिनार है इंडस्ट्रीज के लिए, और हमने इसको जो है हम बहुत ही आभारी हैं हमारे MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कि वो जो है पूरी फोर्स के साथ यहाँ पे आए हैं त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट के लिए। जो सेमिनार हमने किया था गति शक्ति के लिए, उसका अब दूसरा ये पहलू जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, उसी को जो है आगे बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में हम लोग त्रिपुरा से आरंभ कर रहे हैं। मैं डायरेक्टर साहब को और जॉइंट सेक्रेटरी महोदया मैडम को बोलना चाहूँगा कि हम लोग लीडर रहेंगे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं, हम लोग रहेंगे लीडर इंडिया में। अभी तो शुरुआत है, जो आपके स्कीम्स हैं हम इसमें जो है जो आपके नए नए रैम के आपने जो चीज़ हमें बताई है आप आगे देखिए, और हम इसको आगे बढ़ावा करेंगे और आपके ही माध्यम से हम दिखाएंगे इनको कि हम जो है लीड करेंगे इंडिया में। लेकिन आप सब लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आपके पास मिनट टू मिनट प्रोग्राम आ गया है कल के लिए। टुमारो एट 12:30, 12:45 I think there is a meeting tomorrow of the press, no? 12:45. So tomorrow at 12:45 हम request करेंगे, I'll request all of you to please take the bites of the honorable minister जो है MSME के नारायण राणे महाराष्ट्र के हैं, and मैं उनको बहुत ही मानता हूँ क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र का हूँ। और दूसरा I'll also request you to take the bite of our honorable CM, without whose help and without whose direction this wouldn't have been possible. I would now like the floor open for any questions अगर आपके पास हैं, and then we try to conclude it in next 10 minutes. Abhishek sir, I guess you have mentioned something related to investment. Any investors are coming? Yes, tomorrow there are around 30 CEOs of different forum, different people who are coming here, and they're looking at what kind of investment they can do here. For example, SEZ in Sabroom, जो develop कर रहा है, their proprietors are coming. They would be looking at what kind of manufacturing development can take place there. Similarly, rubber में जो है, there are people who want to develop rubber into Spurti cluster, who has been, I mean, Director Saab has just told you about the kind of clusters that is there. तो उस पर जो है they are going to discuss it tomorrow, that what kind of support they can get. क्योंकि state government में we are capped. State governments अगर scheme देते हैं, then we are capped by a state incentive, which is 1 crore. हम लोग भी देते हैं. We also give 40% incentive for any industry. We provide from the state.
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये ज्यादा आएगा अगर हम इसको स्फूर्ति के माध्यम से इसको करेंगे. सो दिस इज व्हाई दे आर कमिंग टू डिस्कस दिस टुमारो. सिमिलरली इन फूड प्रोसेसिंग देयर आर पीपल कमिंग, सेक्टर स्किल काउंसिल के जैसे जो है रबर के एंड गैस के, दे आर कमिंग. सो इट इज गोइंग टू बी, अभी मेरे पास लिस्ट पूरी है नहीं दैट आई कैन टेल यू, कल मैं आपको पूरा लिस्ट दे दूंगा. यू कैन आल्सो टॉक टू देम, दे आर देयर टुमारो. लेकिन they are all there to look at what kind of investment they can do in the state, and we are here to facilitate, to help them come here and help them set up their shops in Tripura. You have mentioned PMEGP scheme में 1.14 lakh micro units have been set up in Northeastern region. Do you have any figure about in Tripura? Okay, मैडम ये Tripura का जरा फिगर निकालिए, बता देता हूँ आपको. Anyway, I'll pass that figure in a while. Any other question that is there? मैं अभी आपको बताता हूँ. While the I'll just tell you. मैडम कितना है? नहीं ये नॉर्थ ईस्ट का है. हम चाह रहे हैं एस्टिमेट है 35,000. त्रिपुरा में अब तक कितने यूनिट हमने बनाए अभी तक? 1.14 लाख जैसे टोटल है, तो वैसे त्रिपुरा में कितने होंगे? ओके, अराउंड 5,000 यूनिट्स. नहीं टोटल 5,000 यूनिट्स. एंड टोटल पीएमईजीपी का जो एस्टिमेटेड हमारा इन्वेस्टमेंट भी हुआ, दैट्स अराउंड 300 crores. एंड इट इज अमंग द, यही तो फिगर ही तो है. एंड दिस इज द लार्जेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट. Tripura is among the largest in Northeast. Assam is also very high. Assam is also equally. After Assam, I think Tripura is there. After Assam, Tripura is there. Sorry, I stand corrected. Number 2 है हम Assam के बाद in PMEG. क्योंकि शेयर नंबर्स है, पॉपुलेशन उनका हमसे ज्यादा है. हाँ. पॉपुलेशन जो है हमें ज्यादा है. Obviously, it is not like that density is more. But just imagine, we are more than Meghalaya, we are more than other states, we are more than Manipur, we are more than Nagaland. So we are number 2, not very far off. during which time? जो अभी जैसे रैंप हुआ है, this has been just in last 2 months. जो रैंप का जो हम लोग ने किया है वो immediately मेरे आने के बाद, I was first to do it under the direction of the honorable CM जो भी हुआ है. और ये फर्स्ट इनिशिएटिव है जो हमने किया है. अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपने, हाँ, जो हमने जो लिया था, इन्होंने बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे ही बोला था, हमने इमीडिएटली उनको 15 दिन के अंदर भेजा था. सो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो डेवलपमेंट है ये हो रहा है, एंड हम लोग और इसको करेंगे. ये नहीं यहाँ पे रुकने वाले. हमने अभी बताया आपको कि वी आर टेकिंग अ रोड मैप टू बी द लीडर इन द कंट्री, एंड विद द सपोर्ट जैसे आप देख रहे हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है वही जो है अगर है तो इट बिकम्स ईजियर काम करने के लिए. मतलब मैं थोड़ी सी चीटिंग कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको हम ज्यादा ट्रैवल करेंगे ताकि आप हमें जो है हेल्प करें, स्टेट को हेल्प करें. So I thank you all. I think madam आपने पैकेट्स आप दे दीजिएगा. But thank you all and we'll see you tomorrow. I think tea refreshment. Want to say something last words? Yeah, we can. I don't know.